નમો અરિહંતાણં, નમો સિદ્ધાણં, નમો આયર્યાણં, નમો ઉવજ્જાયાણં, નમો લોએ સવ્વસાહુણં. એસો પંચણમુક્કારો સર્વપાવપણાસણો મંગલાણં ચ સવ્યેસિં પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો અરિહંતાણં. મહાદેવ્યા કુક્ષિરત્નમ શબ્દજીતરુવાત્મજં રાજચંદ્રમ અહં વંદે તત્વલોચનદાયકમ. તત્વલોચનદાયકમ. પરાત્પર ગુરુવે નમઃ. પરંપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ. પરમ ગુરુવે નમઃ. સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ. અનંત અનંત ભાવ ભેદથી અનંત અનંત નાય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી. ઉપમા આપ્યાની જેને તમારાખવી તે વ્યર્થ આપવાથી નિજમાં પાઈ મેં માની છે. અહો રાજચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તણી. જાણી તેણે જાણી છે ગુરુરાજ તણી વાણી. જાણી તેણે જાણી છે. ઓમ. જય સદગુરુ વંદન. જય જિનેન્દ્ર. તત્વ ચર્ચામાં પરમ તત્વજ્ઞ શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પૃષ્ઠ સંખ્યા 372, વચનામૃત પત્રાંક 449. ત્રીજો પેરેગ્રાફ ચાલે છે. કલ્યાણને વિશે પ્રતિબંધ રૂપ જે કારણો છે તે જીવે વારંવાર વિચારવા ઘટે છે. તે કારણોને વારંવાર વિચારી મટાડવા ઘટે છે. અને એ માર્ગને અનુસર્યા વિના કલ્યાણની પ્રાપ્તિ ઘટતી નથી. મળ, વિક્ષેપ અને અજ્ઞાન એ અનાદિના જીવના 3 દોષ છે. અહીંયા સુધી આપણે વિચારણા કરી હતી. આગળ જ્ઞાની પુરુષોના વચનની પ્રાપ્તિ થાય તેનો યથાયોગ્ય વિચાર થવાથી અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ હોય છે. તે અજ્ઞાનની સંતતિ બળવાન હોવાથી તેનો રોધ થવાને અર્થે અને જ્ઞાની પુરુષના વચનોનો યથાયોગ્ય વિચાર થવાને અર્થે મળ અને વિક્ષેપ મટાડવા ઘટે છે. સરળપણું, ક્ષમા, પોતાના દોષનું જોવું, અલ્પારંભ, અલ્પ પરિગ્રહ એ આદિ મળ મટવાના સાધન છે. જ્ઞાની પુરુષની અત્યંત ભક્તિ તે વિક્ષેપ મટવાનું સાધન છે. કાલે દોષના ઉપર વિચારણા કરી, દોષનું સ્વરૂપ. આજે દોષ મુક્ત થવાનો ઉપાયની વિચારણા. પહેલો દોષ કયો છે? અહીંયા ઉલટા ક્રમથી લીધું છે, એટલે કાલે વિવેચન પણ ઉલટા ક્રમથી લીધું. પહેલો દોષ અજ્ઞાન છે. બીજો દોષ
વિક્ષેપ છે, અને ત્રીજો દોષ એટલે સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર. એટલે કે મિથ્યા દર્શન, મિથ્યા જ્ઞાન અને મિથ્યા અજ્ઞાન તે મિથ્યા દર્શન છે, વિક્ષેપ તે મિથ્યા જ્ઞાન છે, અને મળ તે મિથ્યા ચારિત્ર છે. તો હવે મિથ્યા દર્શન એટલે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ કેવી રીતે હોય, તો એનો ઉપાય કે છે તે જ્ઞાની પુરુષોના વચનની પ્રાપ્તિ થઈ તેનો યથાયોગ્ય વિચાર થવાથી અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ હોય છે. જ્ઞાની પુરુષોના વચનની પ્રાપ્તિ થઈ. જો વચનોની એમ પણ નથી લખ્યો, વચનની પ્રાપ્તિ છે. વચન એટલે બોધ, અને જ્ઞાની પુરુષોના જેટલા બધા વચનો હોય એનો બોધ એક જ હોય છે. એટલે અહીંયા વચનની ઘણા વચનો સાંભળવાથી એક જ બોધ મળે છે. એટલે અહીંયા કીધું કે મહાપુરુષોના વચનની પ્રાપ્તિ થાય. કેમ કે હજારો સત્સંગો કર્યા હોય, હજારો સત્સંગ આપણે સાંભળીએ, પણ એમનો કહેવાનો અભિપ્રાય એક જ છે. કોઈ પણ રીતે સ્વભાવને ઓળખો અને સ્વભાવમાં રહો. आत्म स्वरूप को पहचानो और आत्म स्वरूप होकर के रहो. अपने स्वभाव को पहचानो और स्वभाव रूप होकर के रहो. अपने सच्चे मैं को पहचानो और मिथ्या मैं को निकालो. कोई प्रश्न કર્યું કાલે કે તમે मैं એમ કરો છો તો એ તો અહંકારનો વાચક છે. તો સહી બાત હે. મહાપુરુષોએ તો કીધું છે કે ભાઈ મેંને કાઢવો જોઈએ, ને તમે કહો મેંને લાવો, तो आपकी बात सही है. दो प्रकार के मैं हैं. एक मिथ्या में है, एक सम्यक सत्या में है. मिथ्या में उत्पन्न होता है और विनाश हो जाता है उसका. इस शरीर में आत्मबुद्धि, ये मैं ये शरीर हूं, ये भी तो एक मैं है. ये शब्द मैं बोल रहा हूं, ये भी तो एक मैं है. अंदर से जो विचार आ रहे हैं वो भी तो मैं है. प्रत्येक पर्याय एक मैं है, और वो मैं उत्पन्न होता है और जाता है. और उस मैं के समय एक मैं हमेशा बचा रहता है. बस जो हमेशा बचा रहता है वो मैं हूं मैं. और जो आता और जाता है वो मैं नहीं. इसलिए अपने इस मिथ्या मैं को नष्ट करना है. उसको अपने गुरु के चरणों में चढ़ा देने का है. अहंकार का जो बलिदान कर सकता है वो ही अपने अहम तत्व को प्राप्त कर सकता है. वो ही ऐसा कह सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं. ऐसा कौन कह सकता है जिसने अपने अहम को नष्ट कर दिया है और सच्चे ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया. जो सत्य है वो नित्य नूतन है, हमेशा रहता है, 3 काल में रहता है, वो सत्य है. और जब हम ऐसा कहते हैं कि मैं ये हूं, किसी को पूछा आप कौन हो भाई, नरसिंह मामा, तो वो अगर ऐसा मानता है कि ये नाम है वो मैं हूं, ये रूप है वो मैं हूं, और ये पर्याय है मैं मनुष्य हूं, मैं इंसान हूं, मैं किसी का
पिता हूं, किसी का पुत्र हूं, किसी का मित्र हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं ये जाति वाला हूं, मैं जैन हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ये सब अगर जो मानता है तो ये मैं तो आपका चला जाने वाला है, ये कहां रहने वाला है? नाम और रूप और सब रिश्ते नाते सब पर्याय तो चले जाने वाली है। ये मैं चला जाएगा, इसके बाद भी एक मैं बचेगा। मृत्यु किसकी होती है? हमने कहा मैं मर जाऊंगा तो इसका मतलब मृत्यु के समय में भी कोई एक मैं रहता है जिसको ऐसा डर है कि मैं मर जाऊंगा तो। अगर आप मर ही जा रहे हो तो आपको चिंता किस बात की है? अगर आप ऐसा मानते हो कि आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा ऐसा, तो जब अस्तित्व ही खत्म हो गया तो उस मृत्यु को जानने वाला, अनुभव करने वाला रहा कौन? तो फिर चिंता की बात ही नहीं है भाई, मरने की चिंता किस बात की? पर यहां मरने की चिंता जीव को इसलिए है, अज्ञानी को, कि मैं मरूंगा उस समय मुझे मेरी पीड़ा होगी। इसका अर्थ ये जानता है कि जब मैं मरूंगा उस समय भी मैं रहूंगा। बात समझ में आ रही? हर एक व्यक्ति को केवल दुख इसलिए मरने का कि जब मैं मरूंगा उस समय भी मैं रहूंगा। अगर मैं रहूं ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अस्तित्व ही समाप्त हो गया तो फिर तो पीड़ा किसको होगी, दुख किसको होगा? भोगने वाला कोई बचा ही नहीं। पर उसको ऐसा है कि मैं मरूंगा उस समय भी मैं रहूंगा। चिंता इसी बात की है कि मैं रहूंगा। तो जब आप रहोगे तो फिर चिंता किस बात की? अज्ञानी भी किसी अपेक्षा से अंदर से ज्ञानी है, पर उसके ज्ञान के ऊपर ही उसको भरोसा नहीं है। वास्तव में जगत में कोई अज्ञानी है नहीं, पर उसको अपने ज्ञान के ऊपर भरोसा नहीं है, अपने होने के ऊपर उसको भरोसा ही नहीं है। किसी ने एक प्रश्न और किया कि आप कहते हो कि कोई अज्ञानी है ही नहीं, हम सबको ज्ञानी कहते हो, और हम तो अज्ञानी हैं। अगर हम अज्ञानी अपने आप को ज्ञानी मानेंगे तो बहुत बड़ा दोष है। तो इससे बड़ा दोष कोई हो ही नहीं सकता। ये बात भी सही है। परंतु ज्ञानी किसको किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, यहां तो अपना अनेकांत है ना। तो जो ज्ञानी होते हैं ना, वो हमेशा द्रव्य दृष्टि से देखा करते हैं सबको, पर्याय दृष्टि से नहीं देखा करते हैं। इसलिए उनको सब ज्ञानी लगते हैं, क्योंकि सब ज्ञान स्वभावी है। हम में से ऐसा कौन है जो ज्ञान स्वभावी नहीं है? ये द्रव्य दृष्टि है। अब वो ज्ञान सम्यक है कि विपरीत है, ये सब पर्याय दृष्टि हो गई। तो ज्ञानी किसी को पर्याय दृष्टि से तो देखता ही नहीं है, वो तो द्रव्य दृष्टि से ही देखता है। भले अभी तुम्हारा ज्ञान विपरीत हो, परंतु तुम्हारा विपरीत ज्ञान है वो तुम नहीं हो। समझ में आ रही? ये तुम मूर्खताएं कर रहे हो, मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, वो तुम हो ही नहीं। कल्पना करके अपने को ऐसा मान रहे हो। तुम हो ही नहीं वो, मैं तुमको क्यों मानूं? किसी को अपने बारे में खबर नहीं। जैसे किसी ने बचपन में 1 साल से गोद लिया किसी को, बच्चे को। अब बच्चे को तो यही पता है ना कि मेरे को जो पाल रहे हैं वही मेरे माता पिता हैं। अब वो बच्चा 15-20 साल का हुआ, थोड़ा समझदार हुआ, और किसी दिन उनको कहे कि भाई तुम हमारा बच्चा नहीं हो, तुम किसी और का हो, तो अब तक उसको तो ऐसा ही था कि मैं इनका ही हूं। अब कोई बता रहा है उनको कि तुम मेरे, परंतु जो जिसने गोद लिया था वो तो हमेशा से ही जान रहा है ना कि ये मेरा नहीं है।
पर उसको जब नया बताया जा रहा है तब उसको विश्वास नहीं होता और फिर पता चलता है कि नहीं, ये तो मैं नहीं हूं। पर जिसने गोद लिया था उसको तो पहले से ही पता है कि ये मैं नहीं हूं। ऐसे जो ज्ञानी है उसको तो पहले से ही पता है कि तुम रागादि नहीं हो, शरीर आदि नहीं हो, अज्ञानी तुम नहीं हो। अब जब इसको इसका ज्ञान होगा तब ये अपने आप को मानेगा कि नहीं, वो बता रहे थे ना, वो सही कह रहे थे, मैं अज्ञानी नहीं हूं। पर उसको बाद में पता पड़ेगा। इसके लिए जो सच्चे में जान रहा है वर्तमान में, वो आपको ऐसा थोड़ी कहेगा। वो तो नहीं कहेगा ना, वो तो ऐसे ही कहेगा कि तुम जैसे हो इससे। इसलिए ज्ञानी किसी को अज्ञानी नहीं कहते। कोई किसी को अज्ञानी कहता है तो समझ जाना चाहिए कि वो अज्ञानी है कहने वाला। बात समझ में आ रही? तो हम जो नहीं है वो अपने आप को माने ही क्यों? इसका नाम है ज्ञानी पुरुष ना, ज्ञानी पुरुषों ना वचन नहीं प्राप्ति है। वो हर बात में यही बताना चाहते हैं कि तुम क्या हो। ये जो तुम अपने आप को मान रहे हो, तुम हो ही नहीं। उनके हर एक वचन के हर एक अभिप्राय में वो ही निकलता है। इसलिए वचन बोध तेनो यथा योग्य विचार थवाथी। विचार करके देख ले। हम वास्तव में चैतन्य स्वभावी हैं कि नहीं, विचार करके देखें। हम वास्तव में ज्ञानी है कि नहीं, विचार करके देखें। और नहीं निकले तो फिर कहना कि आप झूठ बोल रहे थे। पर अगर सम्यक विचार करेंगे, गहन विचार करेंगे, तो बुद्धि में ऐसा निर्णय होगा ही होगा कि वास्तव में मैं ज्ञान के अतिरिक्त कुछ हूं ही नहीं। सब आता जाता है पर मैं बचता हूं। ज्ञाता न आता है न जाता है, वो तो केवल ज्ञाता है। जो आता है और जाता है वो सब अज्ञाता है। वो ज्ञाता है ही नहीं, पहली बात। तो हम अनुभव करके देखें, उसको प्रयोग करके कि जो कह रहे वो सही बात है गलत, तो हमारे बुद्धि में भी आएगी, हमारे अनुभव में भी आएगी। पर विश्वास नहीं होता है। आटलो तमे कोई सरल को छो वो हसे गए। महापुरुषो કેટલી મહેનત કરી છે, તમે सीधी करो छो એટલું બધું। सीधी सादी वस्तु समझ में ही नहीं आती व्यक्ति को। जटिल करके बताओ ना उसको, बहुत कठिन करके। आ कंईक बोध छे, આજે આ મને કંઈક बोध लाग्यो, क्योंकि वो जटिल करके बताए एकदम कटलो। व्यक्ति को जटिलता पसंद है, सरलता पसंद ही नहीं, जरा भी पसंद नहीं। अभी शास्त्र की बहुत गहरी गहरी बातें करेंगे ना, कया गुणस्थान में कયું શું છે ને, આ ગુણસ્થાનમાં આમ છે ને, પેલા ગુણસ્થાનમાં આવું થાય છે ને, કેવલીઓ કેટલા પ્રકારના હોય છે ને, સિદ્ધો કેટલા પ્રકારના હોય છે ને, આ કેટલા લોક છે ને, કેટલા, આહ क्या ज्ञान है इनका। बहुत प्रभावित। इनके ज्ञान के आगे कुछ ज्ञान नहीं है। और फिर वो कहता है कि ये सब अज्ञान है। क्यों अज्ञान है? क्योंकि रहने वाला नहीं है ना। केवल रहने वाला तो ज्ञानी है, ये तो आएगा और जाएगा। एक विचार आया फिर गया। जो लोक का विचार कर रहा था वो विचार कहां चला गया, वो ज्ञान कहां गया, नष्ट हो गया। पर विचार करने वाला नष्ट हुआ? विचार नष्ट हो जाता है, विचार करने वाला नष्ट नहीं होता है। ज्ञान नष्ट हो जाता है, ज्ञाता नष्ट नहीं होता है। तो जो नष्ट होता है वो है, कि जो नष्ट नहीं होता वो है। हमें क्या रहना है बताओ? नाशवान होना है कि अविनाशी होना है? तो सीधी बात है, सरल बात है ना। इतलो सरल थोड़ो हसे भाई, इतना ही सरल है ये। और जितना कहने में जितनी कठिनाइयां है ना, अनुभव करने में कोई कठिनाई नहीं।
कहने में तो क्या करना पड़ेगा हमको? अंदर से कहने के भाव जागृत करने पड़ेंगे, फिर बोलना पड़ेगा। कितना कष्ट है। मैं आत्मा हूं ऐसा अगर बोलना है तो बड़ा कष्ट है, पर ऐसा अनुभव करना है तो कष्ट है। अनुभव करना है तो कुछ नहीं करना है, केवल ज्ञान स्वरूप होकर रहो। वहां न काय की क्रिया करनी है, न वचन की क्रिया करनी है, न मन की क्रिया करनी। इन तीनों में से एक भी क्रिया करनी नहीं है, और क्लेश तो इन तीनों की क्रिया से होता है। हम थक क्यों जाते हैं? शरीर हिलता डुलता है तो थक जाते हैं, कहीं ज्यादा प्रवास किया। बोलते हैं तो थक जाते हैं, और बहुत अधिक विचार करते हैं, थक जाते हैं। थकान का कारण और थकान से क्लेश पैदा होता है। अब रेस्ट चाहिए यार, बहुत हो गया। अब आपको कोई कहे कि आपको शरीर भी की चेष्टा भी नहीं करनी, वचन की चेष्टा भी नहीं करनी, मन की चेष्टा भी नहीं करनी, कुछ मत करो, तो आराम लगेगा कि नहीं लगेगा? थकान उतरेगी। मैं कल की एक बात बताता हूं। एक एक बालक बालक क्या, 18-20 साल 22 साल का युवा मिलने के लिए, योगा नहीं होगा ऐसे समय पे, हर जिस समय मेरे सामायिक का समय। तो थोड़ी बात की, मैंने कहा मेरे सामायिक का समय है, और तुमको ध्यान करने बैठा तो बैठ सकते हो, मैं भी ध्यान करूंगा, मेरे ध्यान का समय। तो मेरे को ध्यान आता है नहीं, मैं करूं क्या? तो कुछ मत करो, आज करके तो देखो। कुछ न कुछ करते रहते हो, केवल बैठना है, जितनी देर तक बैठ सको बैठना है। जो जो कचरा है ना अंदर से, दिमाग में से, उसकी तरफ ध्यान नहीं देने का है, केवल रिलैक्स हो जाओ। खराब विचार आए तो भी उसके पीछे मत पड़ो, कोई भी आए किसी के पीछे नहीं पड़ना। केवल तुमको ऐसा समझना कि तुमको सो जाना है। जैसे रेस्ट लेते हैं, नींद लेते हैं, तो नींद में हमको आराम लगता है। इसलिए आराम लगता है कि हम उस समय शरीर हिलता नहीं है, बोलते नहीं है, और बुद्धिपूर्वक विचार भी नहीं करते, इसलिए तो हमको आराम लगता है वहां। और बाद में जब नींद से उठते हैं तो हमको कैसा लगता है? फ्रेश हो गए। क्यों? क्योंकि हमने न तो वहां दिमाग दौड़ाया है, न हमने वहां बोलने के कोई प्रयत्न किए, न हमने कोई शरीर की चेष्टा की। ये मन, वचन और काय, ये तीनों नींद में नईवत मंद पड़ जाते हैं, ये चेष्टाएं। और इस कारण से हमको वहां रिलैक्स लगता है, आराम लगता है। वास्तव में नींद में आराम नींद के कारण नहीं है, नींद में आराम मन, वचन, काय की प्रवृत्ति मंद पड़ जाने से है। इसलिए वहां आनंद आ रहा है। निद्रा का कोई अपना आनंद नहीं है, निद्रा तो एक कर्म है। कौन सा कर्म है? दर्शनावरणीय कर्म के उदय के कारण से निद्रा आती है, परंतु उसका उदय ऐसा है कि मन, वचन, काय की क्रियाओं को मंद कर देता है। मंद कर देता है, इसलिए आनंद आता है। समझ में आई वस्तु? मोहनीय को भी मंद कर देता है। नींद में कोई गुस्सा कर सकता है? सपने में कर सकता है। सपने में गुस्सा कर सकता है, नींद में कोई गुस्सा नहीं कर सकता है। स्वप्न अवस्था अलग है, वो निद्रा की अवस्था नहीं है। इसलिए तो 3 अवस्थाएं कही, एक जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं। तो जागृत का मतलब निद्रा रहित, स्वप्न का मतलब नींद में स्वप्न आता है, वो अवस्था स्वप्न की अवस्था है। तो वो गहरी नींद की अवस्था नहीं है, वहां तो वही आपका दिमाग भी चलेगा, सब चलेगा, सारी चीजें चलेगी। और केवल निद्रा है, निस्वप्न निद्रा, वो एकदम सुषुप्त की अवस्था है। वहां व्यक्ति का मन भी रेस्ट कर रहा है, और वचन भी रेस्ट कर रहा है, और काया भी रेस्ट कर रही है।
इन तीनों के रेस्ट हो जाने से उल्टे सीधे विचार भी नहीं आ रहे हैं, वहां कुछ नहीं, और इस कारण से व्यक्ति को अच्छा लगता है, आहा 4 घंटा कैसी नींद आई। नींद के कारण से मजा नहीं लेना है, वहां मजा आया है, ये सब मंद पड़ गए, इसलिए मोह मंद पड़ गया, वहां राग भी मंद पड़ गया है, द्वेष भी मंद पड़ गया, सब चीजें मंद पड़ गई वहां, इसलिए तीव्र क्रोधादि होते ही नहीं है वहां, कुछ नहीं हो सकता है विकार ज्यादा निद्रा में, अबुद्धिपूर्वक जितने हैं वो है। तो फिर वो लगभग उसने 40 मिनट तक ध्यान किया मेरे साथ बैठ करके। फिर वो 10 मिनट पहले उठ गया, फिर मैं तो 15 मिनट, फिर इधर नहीं इधर उधर हो, शरीर थक जाता, कभी बैठा नहीं हो तो बैठे बैठे कैसे। फिर मैंने पूछा कैसा लगा, वो पहले भी बहुत बार ऐसा ध्यान किया, आज मुझे जितना सुखद अनुभूति हुई ना ऐसी मुझे कभी नहीं हुई, क्योंकि पहले मैं कुछ न कुछ प्रयत्न करने का प्रयत्न करता था, ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, मैंने रिलैक्स नहीं हुआ मैं कभी। मैंने कहा इस जागृति पूर्वक कुछ नहीं करने का अभ्यास करें तो तुमको पुस्तक का एक भी पन्ना पढ़े बगैर तुमको आत्मा की अनुभूति हो सकती है, कुछ भी जाने बगैर, एक पन्ना का एक अक्षर जाने बगैर तुम अपने आत्मा का अनुभव कर सकते हो। केवल तुमको क्या करना है, जागृत रहना है और कुछ नहीं करना है। अपने स्वरूप की जागृति रखो और न काय की चेष्टा करने का प्रयत्न करो, न वचन की चेष्टा करने का प्रयत्न करो, न मन की चेष्टा। मन की चेष्टा थोड़ी बहुत होती है, वो विचार भी केवल आत्म जागृति के लिए है कि कोई अनपेक्षित विचार विकल्प आ गया तो ये मैं नहीं हूं, इतना करने के लिए है बस, वो जबरन कुछ करने के लिए नहीं है। जहां जहां बाधाएं आती है वहां वहां हटाने के लिए वो सब चीजें। फिर देखो मजा, थकान ही नहीं लगती ध्यान में परंतु ऐसा नहीं, और बार बार बहुत विचार आए तो फिर तत्व विचार आदि किसी का आलंबन लेना, विकल्पों में घुस नहीं जाना। इसलिए कहा जागृति, जागृति पूर्वक मन वचन काय को रोका है, वो आत्मा के अनुभव की दशा है, वहां संपूर्ण अपने प्रति होश है, जागना है। पूरे मोक्ष मार्ग को एक शब्द में कहना है, आत्म जागृति, बस इससे अधिक मोक्ष का मार्ग दूसरा नहीं, और बिना मेहनत का काम। अपने स्व के प्रति जागृत रहो कि मैं हूं, मैं ये हूं, बस बाकी सबको गौण करते जाओ। इसका नाम है ज्ञानी पुरुषोना वचननी प्राप्ति थे तेनो यथायोग्य विचार थवाथी अज्ञाननी निवृत्ति होय छे। विश्वास करना पड़ता है बहुत, और विश्वास करके प्रयोग करना पड़ता है। अविश्वास संदेह प्रयोग करके देखें तो जरूर ऐसा फल मिलेगा, प्रयोग करके देखना पड़ता, और प्रयोग भी 1-2 दिन नहीं, सतत करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सफलता जरूर मिलेगी। हम प्रयोग नहीं करते हैं इसलिए होता है इससे। क्या करें, ध्यान करने जाते हैं पर नींद आ जाती है प्रॉब्लम क्या है, नींद आ जाती है, तो क्या करो, नींद आ जाती क्या करना चाहिए? हाँ, कोई उपाय है इसका? ध्यान के समय नींद नहीं आए उसका कोई उपाय? सक्रिय है उसको नींद आ सकती है कभी, निष्क्रिय को नींद आएगी। हम अगर जागृत हैं तो हमको नींद नहीं आ सकती। जागृति का क्या मतलब पता है? हम अपने प्रत्येक परिणाम को के ऊपर नजर रख रहे हैं
और बड़ी पैनी नजर है हमारी, तो किसी भी कर्म के उदय से कोई भी भाव हो हमारी पकड़ में आ जाएगा वो, और उस भाव से भेद ज्ञान होगा। तो जैसे निद्रा आएगी तो दर्शनावरण का उदय हुआ। अब दर्शनावरण के उदय से उपयोग में मंदता रूप भाव आता है, मंद भाव होता है। यह मंद भाव को आपका ज्ञान पकड़ लेगा कि यह दर्शनावरण के उदय से होने वाला भाव है, सुस्ती का भाव, उपयोग की मंदता। ये मैं हूं क्या? तुरंत प्रश्न करना, ये जो उपयोग की सुस्ती है वो मैं हूं क्या? मैं नहीं हूं। मैं रहूं वो सुस्ती का ज्ञाता हो गया। ये किसका ज्ञाता हो गया? अब सुस्ती आएगी कहां से? क्योंकि वो तो अपने ज्ञान स्वभाव में जागृत है, सुस्ती आएगी कहां से? हो सुस्ती को भी उसने अपनी सक्रियता से ज्ञान का विषय बना लिया। वो तो जागृत है। इतना तीक्ष्ण भेद ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर के हम हर कर्म के ज्ञाता रह सकते हैं, हर उदय के ज्ञाता रह सकते हैं। निद्रा सबसे तीक्ष्ण वस्तु है। वो आती है उस समय हम अपना गर्दन लटक जाती है। देखते हैं मैं बहुत से को ध्यान का कि ध्यान करते करते ना, ऐसे करते करते लटक गई। इसका अर्थ है दर्शनावरण के आप अधीन हो गए, अपनी जागृति समाप्त हो गई। जो जागृत है उसको देखना, उसका गर्दन लटकी हुई नहीं मिलेगी। वो क्या होता है कि निद्रा आदि के उदय में शरीर शिथिल हो जाता है, शरीर का प्रत्येक अंग ढीला पड़ जाता है। इसलिए सोए हुए के पैर हिलाना ये आसानी से हिल जाएंगे, सिर हिलाना ऑटोमेटिक हिल जाएगा, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए, क्योंकि सब शिथिल पड़ गया उसका। पर जो ध्यान में है, समाधि में, उसके शरीर को देखना, आप ऐसा लगेगा ये पत्थर हो गया है, इतना मजबूत हो जाता है वो। गर्दन यहां है तो जरा भी नहीं हिलेगी, ऐसे कैसे ही रहेगी। हाथ जरा भी नहीं हिलेंगे, पैर जरा भी नहीं हिलेंगे, एकदम स्टेचू, मूर्ति, घंटों भर ऐसे ही रहेगा वो। समाधि का शरीर के साथ संबंध है। अजागृति है, सुषुप्ति है, उसमें शरीर ढीला पड़ जाता है, और जागृति में शरीर भी जागृत रहता है। इसलिए ध्यान करने वालों को देखना, वो चमकता है, ढीला ढीला नहीं हो, उसका चेहरा भी चमक रहा होता है, उसमें जागृति के भाव होंगे। और नींद वाले का चेहरा देखना, मुरझाया हुआ चेहरा है। इसलिए कोई ध्यान कर रहा है, आंख बंद करके क्या कर रहा है, वो तीक्ष्ण ज्ञानी को पता पड़ जाता है कि ये क्या अंदर गुल खिला रहा है। बैठे बैठे भी कोई सो जाते हैं, पता पड़ता है सब सोए हुए का चेहरा और जो गहन चिंतन में उसका चेहरा, दोनों अलग होंगे, सब चीजें। ऐसे तीक्ष्ण भेद ज्ञान से हमेशा स्वरूप की जागृति। अब जैसे नींद से भेद ज्ञान किया, वैसे वेदना से भेद ज्ञान करो। हर चीज से, वैसे अपने विकारों से भेद ज्ञान करो, सबसे। और वो भेद ज्ञान करके हमेशा स्वस्वरूप में स्थित। इस प्रकार से अज्ञान की निवृत्ति होती है। अब आगे कहते हैं, ते अज्ञानी संत। कोई प्रश्न पूछना है किससे? कोई ने पूछो तो पूछ ही लेना, सोने नहीं मिलेगा किसी को। તે અજ્ઞાનની સંતતિ બળવાન હોવાથી તેનો રોધ થવાને અર્થે જ્ઞાની પુરુષના વચનોનો યથા યોગ્ય વિચાર થવાને અર્થે મળ અને વિક્ષેપ મટાડવા
घटे छे। अब ये एक बार ज्ञान की जागृति तो हो गई, पर वो जागृति हमेशा रहे, उसका प्रयत्न अब आगे करना है। तो जागृति कब जाती है पता है? चित्त की चंचलता से और अंदर के विकारों से। विकारों का उद्रेक बहुत हो जाता है जब, तो भी जागृति चली जाती है, हम विकारमय हो जाते हैं, मैं कौन हूं वो भूल जाते हैं। और चित्त बहुत अधिक घूमता है, भटकता है, इधर का विचार न उसका विचार न, ये अभी ये करना है ना, वो करना है ना, ऐसा करना है ना, ये ऐसा तो चित्त विक्षेपित होता है, तो भी वो ज्ञान मंद पड़ता है, अर्थात जागृति मंद पड़ जाती। इसलिए सतत जागृत रहना, तो इन मल और विक्षेप इन दोनों को मिटाओ, तो सतत जागृत रह सकते। तो कैसे मिटाना वो कह रहे हैं। पहले मल को मिटाना का उपाय बता रहे हैं। मल मतलब विकार। સરળપણો, ક્ષમા, પોતાના દોષનું જોવું, અલ્પારમ, અલ્પ પરિગ્રહ એ આદિ મળ મટવાના સાધન છે। मल का मतलब होता है विकार। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, वेद कषाय से जो होता है वो सारा, फिर कलह करना, पैशून्य करना, अभ्याख्यान करना, अवर्णवाद करना, उस सूत्र पर उपना करना, ये जितने भी 18 पाप स्थान है सब मल, सारे सारे दोष ये सब मल हैं, विकार भाव है। मल का अर्थ ये होता है कि अपने बॉडी का जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, अपन जो खाते हैं और भोजन का फिर वो रस, रक्त आदि वो 7 धातुएं उपधातुएं बनती हैं, तो उसका अगर सब पच गया सारा भोजन, तो मल बनेगा ही नहीं। वो मल ये चीज है कि जो पचा नहीं है, वो मल के रूप में इकट्ठा रहता है। बाकी ने तो रक्त बना लिया, रस बना लिया, जो जो भी धातु है वो सब बन गई। अब जो नहीं पचा है वो मल है, और वो मल बाहर निकलता है, और वो शरीर को खराब करता है। अगर बाहर नहीं निकला तो खराब करता है। इसलिए तो कब्जियत वाले का मन खराब रहता है, शरीर खराब रहता है, इसलिए मन खराब रहता है उसका। इसको मल कहते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट है। तो ये जो कषाय आदि हैं वो अपने आत्मा का एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा हिस्सा है, अलग प्रकार का अंश है। वो अपना नहीं है, दूसरे का अंश है, अतिरिक्त है, और वो निकलेगा नहीं तब तक हमको शांति नहीं पड़ेगी। हमारे अंदर मल है, विकारी है अंदर, इसलिए तो हम आकुल व्याकुल होते हैं। क्रोध भी है, मान भी है, भय भी है, कितनी सारी चीजें, एक क्षण शांति नहीं। तो ये निकालना, कैसे निकालना? सरलपणों। सरलता किसे कहते हैं? हम जैसे हैं वैसे स्वीकार करना, सरलता की पहली सीढ़ी। हम जैसे हैं वैसे पहले स्वीकार करें। कैसे हैं? तो दोनों प्रकार से। मैं द्रव्य दृष्टि से कैसा हूं और मैं पर्याय दृष्टि से कैसा हूं, दोनों को स्वीकार। सरलता केवल पर्याय दृष्टि से अपने आप का स्वीकार भाव नहीं है कि मैं क्रोधी हूं, कामी हूं, मूढ़ हूं। ये सब अपने दोष होते हैं ना, तो हम स्वीकार करते हैं। तो सरलता केवल इतना ही नहीं है, ये तो आपने अपने पर्याय का स्वीकार किया है, उनको निकालना है। निकालना है तो स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। अब दूसरा पक्ष भी स्वीकार करो कि ये इनमें से कोई भी तुम्हारे स्वरूप में नहीं है। शुद्धि को भी स्वीकार करो, अशुद्धि को भी स्वीकार करो, और द्रव्य की दृष्टि से हम जैसे हैं वैसे स्वीकार करो।
और पर्याय की दृष्टि से हम जैसे हैं वैसे स्वीकार करो। ये स्वीकार भाव है कि हम जैसे हैं वैसे अपने आप का स्वीकार करना, इसका नाम सरलपणु, सरलता। लौकिक सरल तो सब हो जाते हैं, पारमार्थिक सरल होना कठिन है। लौकिक सरलता किसको कहते हैं? हमारे दोष हैं तो हम बता देते हैं किसी को कि भाई मेरे अंदर ये दोष है। ये लौकिक पर्याय की दृष्टि से सरलता है, ये भी अच्छी है, ये भी होनी चाहिए। पर द्रव्य की दृष्टि से भी सरलता होनी चाहिए कि हम परमार्थ से जैसे हैं वैसा भी तो स्वीकार करो। केवल इतना ही स्वीकार करते रहेंगे तो हम पर्याय दृष्टि से ही जीते रहेंगे, अच्छे और बुरे में ही भटकते रहेंगे, अटकते रहेंगे। पर शुद्ध स्वभाव का भी तो स्वीकार करो सरलता से। इसका नाम सरलता कहलाता है। आगे सबसे पहले सरलता आएगी, अर्थात अपना स्वीकार भाव आएगा, हम जैसे हैं वैसे द्रव्य और पर्याय दृष्टि से। तब जाकर के गाड़ी आगे बढ़ेगी, तब जाकर के विकार निकलेंगे, तब सब दोष निकलेंगे। टाइम हो गया है, आगे और विचार करेंगे। सावधान, 2 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। सुखधाम अनंत सुसंत चहि दिन रात्र पर शांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पद तेवर ते जय। ओ प्रणमो पद तेवर ते। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की जय। आनंद घन। ओ सूत्र सौ साथी। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।